بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، تہجد بڑی شانوں والی نماز ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں، فرض نمازوں کے بعد کائنات کے رب کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ نماز لگتی ہے وہ تہجد کی نماز لگتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو واضح فرمایا وہ یہی تھا، اے لوگوں، اللہ کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اے لوگوں سلام کو عام کرو، اے لوگوں اللہ کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم دیکھو گے قیامت کے دن تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تہجد بڑی فضیلتوں والی نماز ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو رات کو 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کو یہ آیتیں پڑھنا اتنی پسند ہیں کہ اس کا نام غافلین کی لسٹ میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ، رات کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اگر تم رات کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں رب العالمین کا قرب ملے گا اور اس کی قربت حاصل ہوگی۔ اور دن کو میرے بھائیوں کوئی کتنی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر فجر، ظہر، عصر پڑھ رہا ہے تو اس کا کام کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے۔ رات کا وقت ہے، تم آرام اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر دن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی چاہو تو ہو سکتا ہے کہ تم ارد گرد والے لوگوں سے جھجک جاؤ، وہ گناہوں سے معافی نہ مانگ سکو۔ رات کا وقت ہے، کوئی تمہارے پاس نہیں، تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ اللہ کو یہ تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اس کے بدلے رب العالمین تمہاری زندگی کے سارے گناہ بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی فضیلت والی نماز ہے تہجد کی نماز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور آواز دے کر کے بلاتے، کہتے کہ کتنے خزانے اللہ نے اس رات اتارے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم ان خزانوں سے محروم ہو جاؤ۔ اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور کہتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ، دنیا میں اکٹھے نہیں، جنت میں بھی اکٹھے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، خود بھی تہجد کی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں۔ کتنی لمبی لمبی سردیوں کی راتیں ہیں، ہم ساری رات سو کے گزار دیتے ہیں، ساری رات باتیں کر کے گزار دیتے ہیں، ساری رات بعض اوقات ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں اس زمین کے اوپر جو راتوں کے اوپر اٹھ کر مسلوں کے اوپر سر رکھ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے، اپنے خزانوں سے نوازے گا تو میرے بھائیو، اللہ نہ کرے کہ ہم اس وقت غم کر رہے ہوں، پچھتا رہے ہوں، ہائے کاش میں بھی رات کا کچھ پہر، کچھ منٹ ہی اٹھ جاتا
और अपने रब की इबादत करता, और आज इन खजानों में मुझे भी हिस्सा मिल जाता। उस वक़्त के पछतावे से अगर बचना चाहते हैं तो बड़ा सुनहरी मौका है। पता नहीं जिंदगी में कितने लम्हे और कितने दिन बचे हैं। पक्की नियत करें कि हर रात ये नमाज जरूर पढ़ के सोएं, क्योंकि मेरे रब को ये नमाज बड़ी पसंद है और तमाम अंबिया का तरीका रहा है कि वो रात को अपनी रब की इबादत जरूर किया करते थे। अब जानते हैं तहज्जुद की नमाज का वक़्त कौन सा होता है। तो रात को इशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों इस नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज रात को होती है, तो इशा की नमाज के फर्जों के बाद फौरन तहज्जुदों का वक़्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर तक, फजर की अजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक़्त होता है। इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर की आजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक़्त होता है। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद सहरी के वक़्त सिर्फ तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। तो मेरे भाइयों उस वक़्त तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इंसान को ये शक हो कि मैं रात को सो जाऊंगा, तो सुबह फजर की नमाज से पहले या फजर के एंड टाइम उठूंगा, तो उसे ये चाहिए कि रात को किसी भी वक़्त वो तहज्जुद की नमाज या इशा के बाद पढ़ ले या रात को सोने से पहले पढ़ ले या रात को किसी भी वक़्त उसे जाग आई है। फर्ज करें 1 बजे जाग आ जाती है, 12 बजे जाग आ जाती है, 2 बजे या 11 बजे, किसी भी वक़्त वुजू करके इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इशा से लेके फजर तक इसका टाइम होता है। बाद लोग ये भी समझते हैं कि शायद इस नमाज के लिए सोना जरूरी है। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नहीं। अगर सोकर आप उठ करके नमाज पढ़ते हैं तो वो बेहतरीन और अफजल है। और अगर आप सोते नहीं हैं, जाग ही रहे हैं, रात का काफी वक्त गुजर चुका है और आप सोचते हैं कि मैं सोने से पहले पहले इस नमाज को पढ़ लूं, तो वो किसी भी वक्त इस नमाज को पढ़ सकते हैं और इसके लिए सोना भी जरूरी नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस का आपको फजीलत और वक्त तो मालूम हो गया है। अब आइए इस नमाज की नियत और तरीका जानते हैं। नियत मेरे भाइयों दिल के इरादे को कहते हैं। किसी भी नमाज के लिए आप खड़े हैं, आपको मालूम है कि आप नमाज ज़ोहर पढ़ने लगे हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ने लगे हैं, नमाज इशा पढ़ने लगे हैं या आप नमाज महरिब पढ़ने लगे हैं, 2 रकत पढ़ने लगे हैं, 4 रकत पढ़ने लगे हैं। इसी का नाम नियत है। कोई जुबान से बोलना लाजमी नहीं होता, और अगर कोई जुबान से नियत को दोहराता है तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं नमाज तहज्जुद के तरीका की जानिब। तो मेरे भाइयों, इसकी 2-2 रकत करके नमाज पढ़ी जाती है और कम से कम 2 रकत आप इसकी नमाज पढ़ सकते हैं। ज्यादा पढ़ना चाहें 4, 6, 8, 10 जितना आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नफल नमाज है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो 8 रकतें साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरे भाइयों। कम से कम 2 रकत, ज्यादा से ज्यादा आप जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। 2-2 रकत करके आप इसकी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह का नाम लेके 2 रकत से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और अपने नामा आमाल को तहज्जुद की नमाज से सजाते जाएं। इस नमाज को पढ़ने से दिल में सुकून आता है, चेहरे पर नूर आता है, इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, इंसान के अंदर रूहानी ताकत आ जाती है, गुनाहों से बचने की ताकत आती है और इंसान को खुशियां नसीब होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान को
बहुत ज्यादा मालदार होने के, बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद उसको खुशी नसीब नहीं होती, इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुशियां नसीब करते हैं। रूहानी तौर पर उसका दिल बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह के करीब होता है। और जो चाहता है कि मैं गुनाहों से बचता रहूं, तो उसे ये चाहिए कि तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहे। इस नमाज के बदले अल्लाह पाक उसे गुनाहों से बचाएंगे। रात को वक्त है, सर्दियों की रातें हैं, तो रात को दुआएं कबूल होती हैं, बड़ी रातें हैं। जब भी जिंदगी में कोई गम आए तो आप उसी वक्त तहज्जुद में अल्लाह को पुकार लें, मगर रात के वक्त मांगी हुई दुआएं बड़ा असर रखती हैं। इंशाअल्लाह पक्की नियत करें कि आज के बाद कम से कम चाहे 2 रकत ही पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। अपना शुमार जो है वो तहज्जुद पढ़ने वालों में, नेक और सालेहीन लोगों में जरूर कर लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस नमाज को पढ़कर अपने नामे आमाल को नेकियों से भरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नेकी के कामों में आप हमारा साथ दें। आप इस वीडियो को दूसरे मुसलमान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि आप इस सदक़े जारिया में हमारे साथ शरीक हो सकें। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।